pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss special dispensation concession to four regions: Northeast region, Jammu and Kashmir, Ladakh, and Andaman and Nicobar. This scheme actually special dispensation concession scheme. It is extended up to September 25, 2026. It is under leave travel concession. It is very special one. So under this concession, you can visit to four regions. Okay, Northeast, Jammu and Kashmir, Ladakh, and Andaman and Nicobar. So I will discuss everything. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get my upcoming videos. So you see my contact WhatsApp number, it is 8327782034, and my Telegram channel link is there, t.me/DAPI2034. You can also join my Telegram channel so that you can up to date yourself about my videos. And this session definitely would be interesting one. I will discuss the special dispensation concession under leave travel concession. It is very important one for central government employees and very important one for different exams related to the principal, vice principal, departmental promotion exam. It is a limited departmental competitive examination. So my friends, please subscribe my channel. So with patience, try to listen this video. You can get complete information, and I will clarify everything in a very concisely manner, so that I think that you can understand everything. So now I am going to start. Now 17th September 2024, you see the reference number 1011/15/2022, establishment AIV, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions Department of Personnel and Training. It means already released this amendment. So definitely the number, reference number you see, it is very important one. And this amendment actually released by the government on 17th September 2024. So first one, extension of special dispensation concession under LTC. You must know that it is a very special concession under leave travel concession. So you can visit to four regions. Relaxation to travel by air to visit. It means जो भी employees एयर के लिए नॉन एंटाइटल है वो भी एयर में ट्रैवल कर सकते हैं अंडर दिस कंसेशन. वन थिंग रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इट मीन्स फोर रीजियंस. इट मीन्स दोज एम्प्लॉइज आर नॉन एंटाइटल to travel in air. Also they can get facility to travel in air to visit actually these four regions under special dispensation concession under LTC. Four regions you remember: Northeast region, Jammu and Kashmir, Ladakh, and Andaman and Nicobar. Okay, it is a very interesting one कि जो एम्प्लॉइज एंटाइटल है एआर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो कॉन्सेशन है जो नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो एआर में इट मीन्स ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, दोज एम्प्लॉइज आर नॉट एंटाइटल टू ट्रैवल इन एयर अंडर LTC. So they can get opportunity to visit to these four regions. It means by traveling through air. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेशन है ये स्पेशल फोर रीजियंस के लिए है. ठीक है, तो इसके ऊपर आपको याद रखना है फोर रीजियंस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. And to say that in relaxation to CCS LTC rules 1988, the scheme allowing government servants to travel by air, to Northeast region, Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Territory of Ladakh, Union Territory of Andaman and Nicobar Island. So ये जो कंसेशन था अप टू 25 सितंबर 2024 तक था.
Okay, now already government extended up to 25th September 2026. Okay, so it will effect from 26th September 2024 till 25th September 2026. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये स्कीम था, ये स्कीम जो था अभी जो था अप टू था 25th सितंबर 2024 तक था, मगर अभी इसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फ्रॉम सितंबर 26 टू टिल 25th सितंबर 2026 मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी अब 25th सितंबर 2026 तक ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। ये पहले था, ये स्कीम था 2022 में, ये जो कंसेशन को स्पेशल कंसेशन को गवर्नमेंट रिलीज किया था और ये अप टू 25th सितंबर 2024 तक था। अभी इसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया अप टू 25th सितंबर 2026, मगर अंडर दिस कंसेशन special dispensation concession under LTC only 4 regions. Okay, and mostly interesting कि जो employees actually they are not entitled to travel in air, उनको भी entitlement मिलेगा, वो एयर में ट्रैवल कर सकते हैं to visit these 4 regions: Union Territory of Ladakh, Union Territory of Jammu and Kashmir, Northeast region and अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, राइट, चलो आगे में डिस्कस करते हैं। स्पेशल डिस्पेंसेशन कॉन्सेशन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो एसडीसी स्पेशल कॉन्सेशन है अंडर एलटीसी में, उसका टर्म्स कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन ऑफ वन होम टाउन एलटीसी। क्या करेंगे, हमारा जो सर्विस कैरियर में हम एक होम टाउन एलटीसी, जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होता है, 4 ईयर ब्लॉक पीरियड को हम डिवाइड कर देते हैं 2+2, जैसे अभी ये 2022 टू 25। ठीक है, तो जो सपोज 22-23 ये आपके लिए होम टाउन था और 24-25 वो ऑल इंडिया था, ये ऑल इंडिया था। ठीक है, ये ऑल इंडिया था। तो इसमें ये जो स्कीम में हम एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट वन होम टाउन एलटीसी टू दीज 4 रीजियंस, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमारा एक होम टाउन एलटीसी को हम कन्वर्ट करके ये 4 रीजियंस को हम विजिट कर सकते हैं। और जो दोज एम्प्लॉइज आर नॉट एंटाइटल for air travel, also they can get opportunity to travel in air to visit these 4 regions. तो समझ में आ गया। तो जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होता है वही दे दिया कि 4 ईयर ब्लॉक पीरियड में 2 इयर्स होता है होम टाउन और नेक्स्ट 2 इयर्स होता है ऑल इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम एक होम टाउन एलटीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड में 1 होम टाउन एलटीसी को हम कन्वर्ट करके हम ये 4 रीजियन को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज नेक्स्ट आ जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। नेक्स्ट आ जाएगा 2026 टू 29, ये 4 ईयर ब्लॉक पीरियड है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जनवरी 1 टू दिसंबर 31। तो 26-27 ये होम टाउन है, आप होम टाउन एलटीसी लोगे। तो 28-29 ये ऑल इंडिया एलटीसी होगा, ये ऑल इंडिया होगा। समझ में आ गया। तो इसमें आप ये जो इसमें जो अभी है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, क्या है, अप टू 25th, ये जो अभी एक्सटेंड कर दिया गया 25th सितंबर 2026 तक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आपका 20 जो नेक्स्ट 4 ईयर ब्लॉक आ रहा है तो 2026 टू 2029, उसमें आप देखिए 26-27 होम टाउन है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और 4 रीजियन जो है, इधर कोई भी रीजियन को आप एक विजिट कर सकते हो। ठीक है, मगर विद इन 25th सितंबर 2026। ठीक है, एक होम टाउन, आपका जो होम टाउन एलटीसी है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इधर आप आपका ऑल इंडिया जो एलटीसी है ऑल इंडिया में तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही दे दिया
कि कन्वर्सन ऑफ देयर वन होम टाउन एलटीसी इन ए 4-year ब्लॉक पीरियड टू विजिट ओके वन ऑफ द रीजन आउट ऑफ 4 रीजन्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, नॉट एलिजिबल अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन। तो आपको एक कंडीशन था कहां पर होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। एट व्हाट कंडीशन होम टाउन एलटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। सपोज आपका क्या है, इस कंडीशन में आपका होम टाउन हेडक्वार्टर सेम है। इफ योर होम टाउन एंड हेडक्वार्टर सेम है तो वहां पर तो आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। यहां पर एक्चुअली नो होम टाउन एलटीसी, नो होम टाउन एलटीसी है कि नहीं। यदि आपका होम टाउन जो है वही आपका हेडक्वार्टर है, वहां पर आपको बेसिकली होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। तो यदि इस कंडीशन में तो यहां पर क्या कंडीशन है, एक होम टाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट करके कोई भी एक रीजियन को घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। मगर यहां पर जो आपका होम टाउन वही हेडक्वार्टर है तो आप तो होम टाउन एलटीसी अवेल नहीं कर सकते। तो अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम तो इसमें आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिल रहा है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं जिनका होम टाउन जो है उनका हेडक्वार्टर वही है। तो वो दे दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आर सेम, they are not allowed the conversion of any hometown LTC as they are not eligible for the hometown LTC facility। क्योंकि जिनका होमटाउन हेडक्वार्टर सेम है तो उनको तो होमटाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। तो और रूल है एक होमटाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट करके कोई भी एक रीजियन को आप विजिट कर सकते हो अंडर एलटीसी, अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। तो यहां पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है, यदि आपका होमटाउन हेडक्वार्टर के साथ समान है तो ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम है, एसडीसी स्कीम है, इसको आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा यहां पर एक दे दिया, द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन आइदर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और आइदर इन अंडमान निकोबार, आइदर इन जम्मू एंड कश्मीर और आइदर इन लद्दाख। वो क्या करेंगे, सपोज आपका होम टाउन सपोज नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका होम टाउन है, तो आप जो ये जो आप होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करोगे तो इसमें आप अदर 3 रीजन्स को जा सकते हो। आप इसमें लद्दाख जा सकते हो, अंडमान एंड निकोबार जा सकते हो, आप जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हो, ठीक है। यदि आपका होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका होम टाउन सपोज आपका होम टाउन असम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके कोई भी नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लेस को आप विजिट नहीं कर सकते अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। और आपको यहां पर क्या होगा, जो अदर 3 रीजन्स है आप डिसाइड कर लीजिए कहां पर जाएंगे, मगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आपका होम टाउन अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपका होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर में है तो आपका होम टाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आप जा सकते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन और लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार, कोई भी एक जगह को आप आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके कोई भी एक रीजन को घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही दिया है, द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन North East region, Andaman and Nicobar, Jammu and Kashmir, Ladakh will also be allowed conversion of hometown LTC for availing this scheme to visit any place in any one of the 3 regions out of the above mentioned 4 regions except the region wherein his or her hometown is situated, ठीक है। सपोज आपका यहां पर आपका होम टाउन सपोज अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ गया, तो आप अभी नॉर्थ और ये जो होम टाउन एलटीसी है आप उसको कन्वर्ट करके कोई भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में विजिट नहीं कर सकते। अदर 3 रीजन्स आइदर आप चूज कीजिए, लद्दाख चूज कीजिए, नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर चूज कीजिए, नहीं तो आप अंडमान एंड निकोबार को चूज कीजिए, ठीक है, ओके। आइदर कोई भी एक रीजन को चूज करके आप आपका होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हो, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में कोई भी एक रीजन को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, चलो ठीक है। नेक्स्ट,
फ्रेश रिक्रूट के लिए आएंगे। स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन फॉर फ्रेश रिक्रूट। फ्रेश रिक्रूट आप जानते हो जो ये रहेगा फास्ट जो 8 इयर्स, फास्ट 8 इयर्स उनका एलटीसी डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये होम टाउन है, ठीक है। और फोर्थ ईयर आ जाएगा ऑल इंडिया एलटीसी, ठीक है। ये फ्रेश रिक्रूट के लिए फर्स्ट 4 इयर्स जो होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होम टाउन, जो फोर्थ ईयर उनका होगा ऑल इंडिया। आपको 1 ईयर कंप्लीट करना है ना, जॉब 1 ईयर कंप्लीट करना है। और सभी समय हम इसको, मेरा एलटीसी का वीडियो पढ़ा है, आप देख लीजिए, ठीक है, आप क्लियर हो जाओगे। मगर यहां पर क्या है, थोड़ा मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं कि जो फर्स्ट 8 इयर्स है, 8 इयर्स एलटीसी उनका डिफरेंट है, जो हमारा 4 ईयर ब्लॉक से डिफरेंट है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम टाउन एलटीसी, फोर्थ ईयर ऑल इंडिया। सिमिलरली फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ अगेन आ जाएगा होम टाउन, और एट्थ ईयर आ जाएगा ऑल इंडिया, ठीक है। तो ये है एक्चुअली फ्रेश रिक्रूट का। फर्स्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लो, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इट मीन्स इसके हिसाब से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको होम टाउन मिलेगा, और फोर्थ ईयर आपको ऑल इंडिया मिलेगा। सिमिलरली फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर आपको होम टाउन मिलेगा, और एट्थ ईयर ऑल इंडिया मिलेगा। तो इससे जो अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन है, इसमें क्या है, कोई भी एक होम टाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी एक वन होम टाउन एलटीसी यहां दे दिया, वन ऑफ द थ्री होम टाउन एलटीसी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स applicable to them to visit either नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ओके, मैं अभी बताया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट 4 ईयर आप लीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम टाउन है, फोर्थ ईयर ऑल इंडिया है। सिमिलरली नेक्स्ट 4 इयर्स, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर होम टाउन है, होम टाउन एलटीसी, एट्थ ईयर ऑल इंडिया है। सपोज आपका ज्वाइनिंग देख लीजिए, सपोज आप ज्वाइन किया सितंबर 10, 2024, तो 1 ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 9, 2025 में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, इसमें कंप्लीट 1 ईयर हो गया, इसमें 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो आप एलिजिबल हो जाओगे सितंबर 10 टू दिसंबर, कैलेंडर ईयर लेना है। कैलेंडर ईयर क्या है, जनवरी 1 टू दिसंबर 31। सो दिसंबर 31, 2025 ये फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट ईयर एलटीसी होगा, है कि नहीं, क्योंकि सितंबर 10, 2024 आपका ज्वाइनिंग था। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, सितंबर 9, 2025। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप एलटीसी अवेल कर सकते हो। तो सितंबर 10 टू दिसंबर 31 कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2025 आपका फर्स्ट ईयर, इसी में लेना है, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपका लैप्स कर जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर होगा। सेकेंड ईयर क्या होगा, इस एग्जाम्पल में सेकेंड ईयर हो जाएगा जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2026, ये सेकेंड ईयर। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है जो फ्रेश रिक्रूट है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट 4 ईयर जो ब्लॉक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम टाउन, फोर्थ ईयर ऑल इंडिया, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर होम टाउन, एट्थ ईयर ऑल इंडिया। तो इसमें क्या है, आप एक होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके, ओके, अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, आप कोई भी एक प्लेस को, ये जो रीजन है लद्दाख, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, कोई एक प्लेस को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द 3 होम टाउन एलटीसी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स एप्लीकेबल टू देम टू विजिट। और एक एडिशनल भी है इसमें, और एक एडिशनल आपको मिलेगा, और एक एडिशनल होम टाउन एलटीसी को भी आप कन्वर्ट करके कोई भी एक रीजन को आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो ये फ्रेश रिक्रूट के लिए है। नॉर्मली एक होम टाउन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, और एक एडिशनल है, एडिशनल को भी याद रखना है, और एक एडिशनल होम टाउन एलटीसी को आप कन्वर्ट करके जा सकते हो। सपोज यहां पर क्वेश्चन आता है, कोई बोलता है कि क्या ऑल इंडिया एलटीसी को कन्वर्ट करके हम जा सकते हैं, आप जा सकते हो, क्योंकि जो एआर के लिए नॉन एंटाइटल है, मगर ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है, इसमें आप एआर में ट्रैवल कर सकते हो, चाहे आप एंटाइटल हो कि नहीं।
जिसका एंटाइटलमेंट है वो तो जाएगा, जो एयर के लिए एंटाइटल नहीं है वो भी एयर में ट्रैवल करके अंडर एलटीसी ट्रैवल एयर में ट्रैवल कर सकता है और एक रीजन को जा सकता है। तो कोई भी जो नॉन एंटाइटल है, जो यहां पर लिख देता हूं, जो नॉन एंटाइटल फॉर एयर, जो नॉन एंटाइटल फॉर एयर, वो भी एक उनका ऑल इंडिया एलटीसी को कन्वर्ट करके भी जा सकते हैं कोई एक रीजन को, क्योंकि एयर के लिए वो एंटाइटल है। मगर नॉर्मली जो फ्रेश रिक्रूट है कोई एक होम टाउन को वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक एडिशनल भी मिलेगा, एक एडिशनल होम टाउन एलटीसी को भी कन्वर्ट करके वो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन अंडर में एलटीसी में वो कोई एक रीजन को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मगर डेट क्या रहेगा अभी जो एक्सटेंड होने के बाद, सितंबर 25 2026 इसी के अंदर, ठीक है। अभी एक्सटेंड होकर यही डेडलाइन है सितंबर 25 2026 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर, इसको थोड़ा देखेंगे क्योंकि अभी आप एयर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे नॉर्मली जो आप ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में आप जो नॉन एंटाइटल है, जो नॉन एंटाइटल है, नॉन एंटाइटल मीन्स क्या है, जो एयर के लिए नॉन एंटाइटल है, जो एयर में ट्रैवल नहीं कर सकता है वो भी अभी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है कि नहीं। नॉन एंटाइटल ऑल्सो ट्रैवल इन एयर, ट्रैवल इन एयर अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन, ठीक है। मगर उनको जो टिकट बुक करना है, जो 380 है, 3 ऑथराइज्ड एजेंट से उनको टिकट बुक करना है। ऐसा नहीं कि आपका मर्जी में कोई भी एजेंसी से आप टिकट ले सकते हो, जो 3 ऑथराइज्ड एजेंसी उससे आपको खरीदना है, ठीक है। जैसे हमारा जो नॉर्मल जो हम एंटाइटल है एयर के लिए, जब हम एलटीसी लेते हैं तब हमको 380 से टिकट लेना है, 380 से टिकट लेना है, क्योंकि इसके बाहर लोगे तो वो रिइंबर्समेंट नहीं होगा। वैसा ही ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम है, जो एम्प्लॉइज नॉन एंटाइटल है एयर के लिए वो भी एयर में ट्रैवल कर सकता है, आइदर टू अंडमान निकोबार और टू लद्दाख और टू जम्मू एंड कश्मीर और टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो भी एयर में ट्रैवल कर सकता है। मगर ये 3 एजेंट से उसको टिकट बुक करना है, ठीक है। 380 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, बाल्मर लरिया एंड कंपनी लिमिटेड BLCL, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स ATT और IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये यही 380 है। अभी कोई क्वेश्चन सपोज पूछ सकता है कि हम स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में हम अभी एयर में ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल है, एयर में ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल है, हम क्या कोई भी एजेंसी से हम टिकट ले सकते हैं? नहीं, ओनली यही 3 एजेंसी से आपको टिकट लेना है और उसका रूल्स में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। यही 3 में बुक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मली भी ये भी है, जब सपोज आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो, एयर के लिए एंटाइटल नॉर्मल केस में आप इसमें मत आइए, स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में मत आइए। जैसे आप नॉर्मली एलटीसी लेना चाहते हो मगर आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो, मगर आप एयर में ट्रैवल करना चाहते हो, तो भी आप इसी 3 जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उसी से टिकट आपको लेना है, नहीं है कि और कोई एजेंसी से नहीं है। आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो, सपोज आप सेकेंड एसी के लिए, सेकेंड एसी जो ट्रेन है उसमें एंटाइटल हो, ठीक है, मगर आप चाहते हो कि मैं एयर में ट्रैवल करके जाऊंगा, तो आपको तो रीइंबर्समेंट सेकेंड एसी के हिसाब से होगा, ओके। जो आप एयर में चले गए और सेकेंड, आप तो एंटाइटलमेंट सेकेंड एसी के हिसाब से, ठीक है। और इस केस में आपका सेकेंड एसी एंटाइटल है तो रीइंबर्समेंट आपको सेकेंड एसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। मगर आप एयर में ट्रैवल कर सकते हो, उस केस में भी आपको जो टिकट लेना है यही 3 एजेंट से लेना है, मगर वहां पर कोई टाइम स्लॉट नहीं रहेगा, जो 3 आवर टाइम स्लॉट उसमें नहीं रहेगा, मगर इसी एजेंट से आपको टिकट बुक करना है। आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो, बोले सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, मगर आप एयर में ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल कर सकते हो, मगर टिकट इसी 3 ट्रैवल एजेंट से लेना है, मगर आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा सेकेंड एसी में मिलेगा, सेकेंड एसी के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा,
ठीक है। और एक मजा बात इसमें बोलता हूं, सपोज आप सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल, तो इसमें सपोज आपका टिकट 3000 आ गया, आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो मगर एयर में चले गए 3000, मगर सेकेंड एसी में आपको, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं होता है मगर एक 4000 आपका सेकेंड एसी में एक्चुअली हम देखेंगे तो आप अभी ट्रैवल किया एयर में, ठीक है, आप सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, जो एयर में 3000 खर्च किया मगर सेकेंड एसी में जाते तो आपका 4000 होता, तो आपका रीइंबर्समेंट कितना होगा, रीइंबर्समेंट 3000 में होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल इसमें देता हूं, सपोज इसमें क्या है, आपका एयर में 4000 खर्च हो रहा है मगर सेकेंड एसी में 3000 होगा, तो इसमें कैसे आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, 3000 के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलेगा, क्योंकि आप सेकेंड एसी जो एंटाइटल हो ना, तो सेकेंड एसी के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इसमें द चॉइस ऑफ द ट्रैवल एजेंट फॉर बुकिंग ऑफ टिकट फ्रॉम द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स इज लेफ्ट ओपन टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। कोई भी आप ऑथराइज्ड एजेंसी जैसे आईआरसीटीसी है कि अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स है, बालमर एंड लरी है, किसी से ले सकते हो, एंड ऑफिशियल इन केस ऑफ सेल्फ बुकिंग बेस्ड ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस क्वालिटी। इसमें कोई नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फी विल बी पेड टू दिस। ये जो एटीएच से आप जब टिकट करोगे, ऐसा कोई हिडन एजेंसी चार्जेस की कोई कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स बालमर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक, ये एटीटी अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स एंड आईआरसीटीसी आर टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट। देखिए, आप जब टिकट बुक करोगे तब उनका साइट में जाना है, ठीक है, मगर आपका जो मेल आईडी वो गवर्नमेंट मेल आईडी होना चाहिए, gov.in और nic.in। जो मेल आईडी होगा आपका नॉर्मल मेल आईडी नहीं होगा, gov.in और nic.in। अच्छा, ये मेल आईडी कैसे मिलेगा? फर्स्ट आपका डिपार्टमेंट को आप बता दो, आपका जो साला दर्पण आईडी की एम्प्लॉय आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका डिटेल्स रिकॉर्ड दे दो, तो वो क्या करेंगे, आपका जो डिपार्टमेंट है वो रजिस्टर करेगा। चाहे सपोज आपका डिपार्टमेंट कौन सा ट्रैवल एजेंसी के साथ उसका लिंक है, बालमर लरी के साथ कि अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कि आईआरसीटीसी के साथ, मगर आपका खुद का मेल में आप टिकट बुक नहीं कर सकते। इसके लिए gov.in और nic.in का मेल चाहिए। तो फर्स्ट आप अप्रोच करो आपका डिपार्टमेंट को, तो आपका डिपार्टमेंट को कुछ रिकॉर्ड देना है, आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको देना है। तो अब आपको ये एक मेल आईडी, जो ऑफिशियल मेल आईडी आपको मिलेगा, तो ऑफिशियल मेल आईडी में आप जाकर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, अभी बता दिया, जो आप जब एक स्लॉट में जाओगे, सपोज इसी के अंदर आप प्लेन बुक करना चाहते हो, 6 PM 3 आवर है, आप मिडनाइट से आप कैलकुलेट 3 आवर, सपोज ये एक 3 आवर स्लॉट है, सभी 3 आवर स्लॉट है, मिडनाइट से नेक्स्ट डे मिडनाइट तक 3 आवर। मगर एक एग्जांपल देता हूं, ये इसी स्लॉट में आप जाइए, आप जो डेस्टिनेशन को जा रहे हो वो फ्लाइट्स पूरा आ जाएगा, पूरा फ्लाइट्स आ गया, तो हमको चिपेस्ट जो है, जो चिपर फ्लाइट है उसको बुक करना है, समझ में आ रहा है। तो इसी स्लॉट में पूरा फ्लाइट उसका प्राइस आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। तो एडवांस के लिए फर्स्ट आप एडवांस लेने के पहले आप ओनली स्क्रीनशॉट, टिकट बुक मत करो, एक स्क्रीनशॉट, एक पर्टिकुलर स्लॉट, पर्टिकुलर, सपोज मैं एग्जांपल, सपोज आई अज्यूम दैट इसी स्लॉट को मैं चूज किया, तो इसी स्लॉट में मैं क्या करूंगा ना, जो भी फ्लाइट है वो पूरा टोटल आ जाएगा मेरा डेस्टिनेशन के लिए, तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि चिपेस्ट फ्लाइट कौन है, क्योंकि ये बोल रहा है इसी स्लॉट में जो भी फ्लाइट और प्राइस आएगा उसमें आपको चिपेस्ट वन को लेना है। और उसमें बता दिया एक ट्रिक, चिपेस्ट में क्या है, सपोज नॉर्मल है 6000, ये चिपेस्ट फ्लाइट है जो प्राइस है, मगर इसके अंदर सपोज ये चिपेस्ट फ्लाइट है, तो इसका 10% आप निकाल दीजिए, सो 10% एक्चुअली 6600, तो इसी के अंदर कोई भी फ्लाइट में जा सकते हो इसी प्राइस के अंदर। एक्चुअली चिपेस्ट फ्लाइट 6000 है, मगर ये चिपेस्ट फ्लाइट में आप जाना नहीं चाहते हो, और कोई भी फ्लाइट आप ले लो मगर इसी के अंदर आना चाहिए, तो जो 10% एक्चुअली प्राइस मोर देन द
मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, ये हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, अभी चीपेस्ट फ्लाइट 6000 है, तो रूल बता रहा है कि आपको चीपेस्ट फ्लाइट में जाना है, मगर अभी एक उसमें ऐड कर दिया कि उसमें 10% के अंदर हाइक कर सकते हो। इट मीन्स द प्राइस ऑफ द फ्लाइट वुड बी 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट। सपोज मेरा एग्जांपल जो चीपेस्ट फ्लाइट था, जो आप स्लॉट ले लिया था 6 to 9 PM, मेरा एग्जांपल में इसी स्लॉट में जो भी फ्लाइट्स और प्राइस आ गया, सबसे चीपेस्ट 6000 था, मगर मैं इस फ्लाइट में जाना नहीं चाहता हूं, तो इसके अंदर कोई भी फ्लाइट प्राइस है 6000 to 6600, क्योंकि 6000 का 10% क्या है, 600 है, उसमें ऐड कर दो। इसी के अंदर कोई भी फ्लाइट का प्राइस होना चाहिए जिसको आप चूज करोगे। और जब आप ये एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप जाना चाहते हो कि इसी स्लॉट 6 to 9 PM के अंदर मैं फ्लाइट बुक करना चाहता हूं, पूरा फ्लाइट्स आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपको रखना चाहिए। जब रीइंबर्समेंट होगा वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। स्क्रीनशॉट से पता चल जाएगा कि कौन सा स्लॉट को आप चूज किया और उसी स्लॉट में क्या क्या फ्लाइट था आपका डेस्टिनेशन को, और उसमें कौन चीपेस्ट था। और चीपेस्ट था तो उसमें 10% ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया कि फ्लाइट एक्चुअली चीपेस्ट 6000 था, आप जाना नहीं चाहते हो और कोई एक फ्लाइट में जाना चाहते हो, तो उसका 10% निकल के 6600, इसी के अंदर कोई फ्लाइट का प्राइस है तो उसको चूज कर सकते हो। समझ में आ गया। मगर स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है इसी स्लॉट के अंदर। तो वही बताया कि ऑल द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स आर टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट having the cheapest fare and the flights having the fare 10% more than the cheapest fare only is in the desired time slot at the time of booking the air tickets by the government employees for the purpose of LTC journey। समझ में अभी आ गया। तो आपको सपोज एक स्लॉट, और एक बार थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, सपोज इसमें आप बुक करोगे कि 3 PM to 3 आवर स्लॉट में बताया 3 PM to 6 PM, ये स्लॉट को आप चूज किया। अच्छा, इसी स्लॉट में आपका डेस्टिनेशन को सभी फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। सभी फ्लाइट आने के बाद, ठीक है, सभी फ्लाइट आने के बाद आपका देखिए, सपोज ये फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट ऐसे आ गया। इसमें प्राइस, इसमें 8000 है, इसमें 9000 है, इसमें 7000 है, और एक है जो फोर्थ फ्लाइट है 7500 है। तो 4 फ्लाइट है इसी स्लॉट में, तो ये प्राइस आ गया। देखिए इसी स्लॉट आ गया 3 to 6 PM आप चूज किए, ये सब फ्लाइट आ गया, 4 फ्लाइट आ गया डेस्टिनेशन को, उसका प्राइस भी आ गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको रखना है, रीइंबर्समेंट टाइम में स्क्रीनशॉट को लेना है। अच्छा, रूल बता रहा है चीपेस्ट फ्लाइट क्या है, यहां पर 7000 है, चीपेस्ट फ्लाइट 7000 है, मगर आपको अभी एक गवर्नमेंट ऑप्शन दिया, इसमें 10% हाइक कर दो। सो 10% हाइक, सपोज आप 10% हाइक कर देते हो, यहां पर मैं अपवर्ड 10% हाइक कर देते हो, तो वो कितना आ जाएगा 7700। तो 7000 to 700 के अंदर कोई भी फ्लाइट है आप चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ओनली चीपेस्ट फ्लाइट में आपको जाना है, मगर 10% जो बताया अभी, यू कैन चूज द फ्लाइट हुज प्राइस इज 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट। यू चूज द फ्लाइट हुज प्राइस इज 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट। तो चीपेस्ट फ्लाइट 7000 था, उसका 10% कितना है, 700 है। तो 7000, सो 7000 to 7700, 7000 to 7700 के अंदर कोई भी फ्लाइट है आप उसको भी चूज कर सकते हो। तो अभी एक फ्लाइट है, फोर्थ फ्लाइट, तो इसको आप चूज करोगे, तो इसका ये है जो एक रेंज के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं कि ओनली चीपेस्ट पे। तो अभी जो रूल दे दिया कि यू ऑल्सो चूज द फ्लाइट हुज प्राइस इज 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, ठीक है। और ठीक है, तो एक स्लॉट चूज करो, जो डेस्टिनेशन को सभी फ्लाइट्स आ जाएगा, स्क्रीनशॉट रखो, उसका स्क्रीनशॉट आपको रखना है। रीइंबर्समेंट टाइम में स्क्रीनशॉट को भी, स्क्रीनशॉट का डॉक्यूमेंट को भेजना है, और उसमें आपका पूरा चीपेस्ट फ्लाइट क्लियरली दिखाई दे रहा है। और भी रूल अभी आया है कि आप एक फ्लाइट का प्राइस चूज करो जिसका प्राइस 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट। तो अभी मेरा एग्जांपल में जैसे चीपेस्ट फ्लाइट 7000 था, 10% उसका 700 हो रहा है और 7700, तो 7000 to 7700 के अंदर कोई फ्लाइट है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये भी स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन में लागू होगा। जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है
जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है वो भी एयर में ट्रैवल कर सकता है, मगर इसी तरीके से उसको टिकट बुक करना है। ठीक है, जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है, जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कॉन्सेशन है, एसडीसी नॉट स्कीम, स्पेशल डिस्पेंसेशन कॉन्सेशन जो है अंडर एलटीसी, उसको भी इसी तरीके से नॉर्मली जो हम एयर में एंटाइटल है इस तरीके से एलटीसी टिकट को बुक करते हैं, वैसे ही टिकट को बुक करना है। चलो नेक्स्ट वन। Therefore, the booking of air ticket for the purpose of LTC on the website of these three authorized travel agents shall itself be a proof। तो प्रूफ हो गया ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो स्क्रीनशॉट में प्रूफ स्क्रीनशॉट ही तो प्रूफ है। आप कौन सा एजेंसी को कौन सा एजेंसी से आप टिकट लिया, कौन सा स्लॉट, और उसमें क्या क्या फ्लाइट था, उसका प्राइस था, और कौन चीपेस्ट था, और उसका 10% के हिसाब से सपोज यू चूज द फ्लाइट हुज प्राइस इज 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, सब डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, और मजा बात है, आप ऐसे टिकट बुक करोगे तो आपका टिकट में एलटीसी मेंशन होगा। ठीक है, एलटीसी टिकट के ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, आप जब टिकट आपका मिल जाएगा उसमें क्लियरली एलटीसी मेंशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ चीज आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है आपके पास, अभी गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं है, तो अभी आपका डिपार्टमेंट को आप अप्रोच करो, एलटीसी के लिए मुझे गवर्नमेंट मेल आईडी चाहिए। आपका नॉर्मल आईडी जो जीमेल, याहू की रेडिफ मेल, ये काम नहीं करेगा। आपको एक गवर्नमेंट मेल आईडी, जो गवर्नमेंट मेल आईडी gov.in की nic.in, ऐसा आपको मेल आईडी मिलना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपका डिपार्टमेंट को आप अप्रोच कीजिए, लेटर लिखिए, और उसमें आपका नेम, ओके, कब आप ज्वाइन किया था, आपका जो क्या डेट ऑफ बर्थ है, और आपका एम्प्लॉय आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एम्प्लॉय आईडी जैसे कि साला दर्पण आईडी आता है, साला दर्पण आईडी, ये सब देना है। तो अब आपको एक मेल आईडी, गवर्नमेंट मेल आईडी इशू होगा एलटीसी के लिए, तो उसमें जाकर आप जो एजेंसी के साथ आपका डिपार्टमेंट का, सपोज आपका डिपार्टमेंट का लिंक है बाल्मर एंड लरी, तो उसमें जाकर वो गवर्नमेंट मेल आईडी जो आपको मिला उसी से ही आप लॉग इन कर सकते हो, आपका नॉर्मल मेल आईडी से नहीं होगा। ठीक है, वो फर्स्ट वेरीफाई करेगा आपका गवर्नमेंट मेल आईडी, तब आप एक लॉगिन आईडी पासवर्ड करके आप आपका जो डिपेंडेंट्स है उनको ऐड करके आप टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, जब करोगे आपको एक एलटीसी वो टिकट के ऊपर आएगा, और स्लॉट के हिसाब से मैं बताया अभी डिटेल्स आपको। नेक्स्ट है, ये स्लॉट है। स्लॉट क्या है मैं बताया था, मिडनाइट टू मिडनाइट 3 आवर स्लॉट होता है। सपोज देखिए, ये 12 मिडनाइट 12 to 3 आवर्स, ये 3 to 6 PM, 6 to 9 सॉरी, ये 12 to 3 AM, 3 to 6 AM, 6 to 9 AM, 9 to 12, 9 AM to 12 नून आ गया, देन 12 noon to 3 PM, 3 to 6 PM, 6 to 9 PM, देन 9 to 12 मिडनाइट, ऐसे 3 आवर स्लॉट होता है। तो 3 आवर स्लॉट में जाकर आप बुक करोगे टिकट, उसमें जो आप डेस्टिनेशन जो आपका कहां से आप विजिट करोगे, जो आपका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है उससे आप डेस्टिनेशन भरोगे, तो आपको पूरा फ्लाइट्स आ जाएगा एक पर्टिकुलर स्लॉट में, उसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, उसमें पूरा फ्लाइट्स और प्राइस आ जाएगा। सपोज आप चूज किया, सपोज यही बता रहा हूं 9 to 12 नून, इसमें आप चूज किया, इसी के अंदर सपोज आपको जाना है, सपोज जैसे बीबीआई भुवनेश्वर टू आपको इम्फाल जाना है, बीबीआई इम्फाल आप डालोगे तो उसमें सब फ्लाइट्स आ जाएगा। जब सब फ्लाइट्स प्राइस आ जाएगा उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, उसका स्क्रीनशॉट रखो, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रीइंबर्समेंट क्लेम करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, उसको ये स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट को भी ऐड करना है। ठीक है, उसमें सब फ्लाइट्स आ जाएगा, उसमें फर्स्ट चीपेस्ट है, सपोज इसमें एक फ्लाइट है चीपेस्ट यही है, 5000 है, ये चीपेस्ट है, ये चीपेस्ट है, मगर अदर फ्लाइट्स भी है, मगर इसका 10%, 5000 का 10% 5500, तो 5500, तो इसमें और एक कोई भी फ्लाइट है जिसका प्राइस इसी के अंदर में है, आप चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ओनली चीपेस्ट फ्लाइट को चूज करोगे, अभी बोल दिया ना कि द फ्लाइट प्राइस वुड बी 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, तो इसी का रेंज के अंदर कोई प्लेन का प्राइस है तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, इसी रेंज के अंदर, इसी से इसका बियॉन्ड में नहीं जाएगा, इसका बियॉन्ड में जाएगा तो आपका रिइंबर्समेंट नहीं होगा। ठीक है,
चलो, अच्छा यहां पर दे दिया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर आर अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन। अभी मैं बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम अभी है जो 25 सितंबर 2026 तक है, इसमें जो नॉन एंटाइटल है, आप देख लीजिए यहां पर जो नॉन एंटाइटल्ड जो एम्प्लॉय है, जो एआर के लिए नॉन एंटाइटल है, वो भी एआर में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसके लिए एक रूट होता है, वो देखेंगे। तो वही उनको जैसे मैं बताया वैसा ही टिकट बुक करना है। थ्री ऑथराइज्ड एजेंसी से उनको टिकट बुक करना है, ठीक है। मगर नॉन एंटाइटल है मींस जब वो एयर में ट्रैवल करेंगे, सपोज नॉर्थ ईस्ट रीजन जाएंगे, तब उनका टिकट जो होगा एयर टिकट कोलकाता और गुवाहाटी एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऐसा नहीं कि आपका मर्जी में कोई भी एयरपोर्ट से आप टिकट बुक करके जा सकते हो, ठीक है, आप जा सकते हो मगर रीइंबर्समेंट नहीं होगा। मगर जनरली जो आप जो नॉट एंटाइटल्ड हो, आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हो, मगर अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम आप एंटाइटल हो एयर में। मगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना चाहते हो तो बिटवीन कोलकाता गुवाहाटी से कोई प्लेस में जाओ, ठीक है। सपोज आप शिलोंग जाना चाहते हो, कोलकाता टू शिलोंग, नहीं तो गुवाहाटी टू शिलोंग। अच्छा, आप बोलोगे सर कोलकाता गुवाहाटी तक हम कैसे जाएंगे? आपका जो एंटाइटलमेंट है, सपोज आप एंटाइटल हो सेकंड एसी, तो सेकंड एसी में आपका जो प्लेस है, आप सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज शिलोंग जाना है, ठीक है, विजिट करना है, तो भुवनेश्वर से आप जो कोलकाता है ना, आप जाओगे, आपका एंटाइटलमेंट क्या है? सेकंड एसी में जाओगे, और वहां से आप कोलकाता टू शिलोंग आप जा सकते हो प्लेन में। और ऐसा नहीं है कि आप भुवनेश्वर टू सीधा शिलोंग में प्लेन में जाओगे, वो रीइंबर्समेंट नहीं होगा। जा सकते हो मगर रीइंबर्समेंट नहीं होगा। तो उसमें रीइंबर्समेंट कैसे होगा मैं आगे में बताऊंगा। मगर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना है तो इसी कोलकाता गुवाहाटी देकर जाना है। सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूं कि आप सपोज आपको ईटानगर जाना है, तो सपोज आप बीबीएसआर से गुवाहाटी आपका एंटाइटलमेंट है सेकंड एसी में जाइए, और गुवाहाटी टू ईटानगर आप एयर में जाइए, इसमें एयर में जाइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना चाहते हो तो आपको कोलकाता गुवाहाटी से आपको एयर टिकट बुक करना है। तब तक अप टू कोलकाता और अप टू गुवाहाटी आपको आपका जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से जाना है। आपका एंटाइटलमेंट सेकंड एसी में जाइए, और वहां से जैसे मैं एग्जांपल दे दिया कि भुवनेश्वर टू आप ईटानगर जाओगे, भुवनेश्वर टू गुवाहाटी जा सकते हो, भुवनेश्वर टू गुवाहाटी आप सेकंड एसी में चले जाओ, गुवाहाटी टू ईटानगर एयर में, कि भुवनेश्वर टू इसमें भी जा सकते हो, भुवनेश्वर टू कोलकाता आप चले जाओ सेकंड एसी में, और कोलकाता टू ईटानगर आप जाओगे एयर में, ठीक है। और वैसा ही आप जाना चाहते हो अंडमान एंड निकोबार जाना चाहते हो तो आपको जो प्लेन में जाना है कोलकाता, नहीं तो चेन्नई, नहीं तो विशाखापट्टनम, नहीं तो पोर्ट ब्लेयर। ये अप टू दिस वन आपको आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से जाना है। सपोज आप सेकंड एसी में एंटाइटल हो, अप टू कोलकाता, अप टू चेन्नई, अप टू विशाखापट्टनम, अप टू पोर्ट ब्लेयर, कि कौन सा रूट को आप चूज करते हो। अप टू दिस वन आपको आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से जाना है, और यहां से आपको प्लेन में जाना है, ठीक है। और वैसे ही आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जाना चाहते हो तो जो आप जाओगे एयर में, यही प्लेस से टिकट बुक करो, चाहे दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और अमृतसर टू जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मगर दिल्ली और अमृतसर तक आपका जो एंटाइटलमेंट है आप जाइए, आप सेकंड एसी के लिए एंटाइटल है, दिल्ली अमृतसर तक आप सेकंड एसी में जाइए। उसके बाद आप इसी एयरपोर्ट से आप जाइए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, आपको एयर टिकट बुक करना है, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो जो नॉन एंटाइटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के हिसाब से। मगर जो आप टिकट बुक करोगे, मैं जैसे बताया आपको, अभी स्लॉट चूज करना है, फर्स्ट एक गवर्नमेंट मेल आईडी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मेल आईडी आप कैसे अप्रोच करोगे आपका डिपार्टमेंट को, आपको गवर्नमेंट मेल आईडी मिलेगा, एक स्लॉट चूज कीजिए, डेस्टिनेशन को सब फ्लाइट्स आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें देखिए कौन सा चीपेस्ट है, उससे 10% मोर करके और कोई फ्लाइट उसी की रेंज के अंदर आता है तो आप चूज कीजिए,
द फ्लाइट ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्लाइट विच इज 10% मोर देन द चीपेस्ट वन। तो ऐसे आपको करना है और उसमें एलटीसी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्पेशल डिस्पेंसेशन कॉन्सेशन में भी ऐसे ही टिकट आपको बुक करना है। वो 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स जैसे बालमर एंड लरी, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, आईआरसीटीसी, ठीक है, क्लियर। ये रूट है, इसी रूट के थ्रू आपको जाना है, इसको आपको याद रखना है। ये नहीं है कि आप डायरेक्टली आप चले गए, सपोज आप नॉर्थ ईस्ट रीजन आना चाहते हो, डायरेक्टली फ्लाइट लेकर भुवनेश्वर से आ जाओगे तो उसके हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्ट आ जाते हो तो कैसे रिइंबर्समेंट मिलेगा आगे हम डिस्कस करेंगे, मगर उसी रूट के हिसाब से। तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन विजिट करना चाहते हो तो अप टू कोलकाता एंड गुवाहाटी आपका जो एंटाइटलमेंट है, सपोज आप सेकंड एसी है, सेकंड एसी में आइए और वहां से आप एयर ट्रैवल कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा ही जैसे अंडमान एंड निकोबार आप विजिट करोगे, जैसे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर तक आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से आइए और वहां से आप एयर में जा सकते हो। और सिमिलरली आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख जाना चाहते हो तो न्यू दिल्ली और अमृतसर तक आपका जो एंटाइटलमेंट है आइए और वहां से प्लेन में आप जाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, तो वही दे दिया, जर्नी फ्रॉम दीज नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स अप टू कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर शैल बी अंडरटेकन एज पर देयर एंटाइटलमेंट। आपका एंटाइटलमेंट, सपोज आपका यहां पर थोड़ा बता देता हूं, आपका जो एंटाइटलमेंट है ये सेकेंड एसी है, ठीक है, सेकेंड एसी है। तो आपको अभी जाना है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर जाना है, सपोज मेरा जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर है, बीबीएसआर है, ठीक है। तो मैं बीबीएसआर से न्यू दिल्ली सेकेंड एसी में जाऊंगा, बीबीएसआर से न्यू दिल्ली सेकेंड एसी में जाऊंगा और न्यू दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर एयर में जाऊंगा, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। नहीं तो और एक ऑप्शन है, जैसे इसी में ये जो दे दिया, सपोज मुझे मेरा डेस्टिनेशन में जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते हो तो मेरा जो हेडक्वार्टर है बीबीएसआर है, ये मेरा हेडक्वार्टर है। तो इसमें मैं अमृतसर चला गया सेकेंड एसी में, ओके। जो मैं यहां से अमृतसर चला गया सेकेंड एसी में, क्योंकि मैं सेकेंड एसी में एंटाइटल हूं, मैं सेकेंड एसी में एंटाइटल हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, यहां पर सपोज मेरा बीबीएसआर हेडक्वार्टर है, ठीक है, और मैं यहां से अभी जम्मू कश्मीर जाना चाहता हूं तो मैं अमृतसर तक सेकेंड एसी में एंटाइटल है, मैं सेकेंड एसी में जाऊंगा और यहां से मैं जम्मू एंड कश्मीर की लद्दाख एयर में जा सकता हूं। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये रूट जो है, रूट को आपको याद रखना है और वैसे ही आपको टिकट बुक करना है। जैसे मैं बताया 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स, आप नॉन एंटाइटल हो फिर भी आपको वैसे ही आप ये जो टिकट बुक करोगे, प्लेन टिकट ना, अमृतसर टू जम्मू एंड कश्मीर, मेरा एग्जांपल में आपको वैसा ही तो 3 ट्रैवल एजेंट, आप फर्स्ट एक गवर्नमेंट मेल आईडी क्रिएट कीजिए, आपका डिपार्टमेंट को अप्रोच करके गवर्नमेंट मेल आईडी आपका क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आप सपोज आपका डिपार्टमेंट जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ लिंक है उसी से आप बुक कीजिए और एक स्लॉट चूज कीजिए। ये स्लॉट जो है यहां पर दे दिया, मैं अभी बताया 3 आवर स्लॉट, और स्लॉट में आपका डेस्टिनेशन डालेंगे तो सभी प्लेन्स आ जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है। और उसमें जो चीपेस्ट है उसको डिटेक्ट कीजिए, चीपेस्ट जो फ्लाइट है उसमें 10% हाइक कर दीजिए, 10% इंक्रीज कर दीजिए, और उसी रेंज के अंदर और कोई फ्लाइट है जिसका प्राइस 10% मोर देन द चीपेस्ट वन, उसको भी चूज कर सकते हो। जैसे आपका फ्लाइट जो 8000 है, ये चीपेस्ट वन है, ये चीपेस्ट वन है, मगर इसका 10% कितना है 8000 का 800 है, 8800 के अंदर और कोई फ्लाइट है आप चूज कर सकते हो इसी रेंज के अंदर, क्योंकि अभी मैं बता दिया कि द प्राइस ऑफ द फ्लाइट द प्राइस ऑफ द फ्लाइट वुड बी 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट। तो इसी के रेंज के अंदर और कोई फ्लाइट है आप ले सकते हो, ठीक है। और इस स्लॉट को चूज कीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप टिकट करोगे तो आपको भी टिकट के ऊपर भी एलटीसी मेंशन होकर आएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट रखिए जो डिटेल्स में बता दिया आपको। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में एलटीसी लेना चाहते हो फिर भी ऐसे ही आपको टिकट बुक करना है। चलो, यहां पर दे दिया ऑल 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स
बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, ATT अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, ATT है, AIT हो गया गलती से, ATT एंड IRCTC। ओके, वही चीज बताया। तो ये जो मैं अभी बताया ना, जो आप नॉन एंटाइटल हो, मगर सपोज नॉन एंटाइटल होने से भी आप वैसे ही टिकट आपको बुक करना है। सपोज आप देखिए, आपका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आप सपोज आसाम जाना चाहते हो, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। आपका हेडक्वार्टर BBSR है, ये हेडक्वार्टर है। आपका जो एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट लिख दिया सेकेंड AC है, सेकेंड AC है। तो आप अभी आसाम जाओगे, तो आप यहां पे BBSR टू कोलकाता, कोलकाता आप सेकेंड AC में जाओ, सेकेंड AC में, और कोलकाता टू गुवाहाटी चले जाओ, गुवाहाटी एयर में चले जाओ, ठीक है। मगर आपको डायरेक्टली BBSR टू गुवाहाटी चले जाओगे तो मुश्किल होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज यहां पर आपको भाई जो एंटाइटलमेंट है, आपका एंटाइटलमेंट है सेकेंड AC है। आपका जो आप जिस डेस्टिनेशन को जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन है इम्फाल है, डेस्टिनेशन इम्फाल है, ठीक है। आपका हेडक्वार्टर है अभी BBSR भुवनेश्वर है हेडक्वार्टर। तो रूल क्या है, आप दो रूट में जा सकते हो, चाहे जो प्लेन आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि BBSR से फ्लाइट नहीं है इम्फाल को, है, मगर आप जा नहीं सकते। आपका रूट है कोलकाता गुवाहाटी। सपोज BBSR से आप कोलकाता जाइए, आपका एंटाइटलमेंट क्या है, सेकेंड AC, और कोलकाता टू जो डेस्टिनेशन है इम्फाल आप जाओगे एयर में, ऐसे जाना है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। नहीं तो आप कोलकाता और गुवाहाटी, कोलकाता और गुवाहाटी, BBSR टू कोलकाता और गुवाहाटी आप सेकेंड AC में जाइए, और वहां से आप इम्फाल जाइए एयर में, क्योंकि ऐसा ही है रूल है। और इसमें जो टिकट आप बुक करोगे, 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स को जाना है। आप नॉन एंटाइटल हो, यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉन एंटाइटल, नॉन एंटाइटल, नॉन एंटाइटल इन एयर, मगर आप एंटाइटल हो जाते हो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में, SDC जो अंडर LTC में, ठीक है। तो इसमें आप 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स को जाइए, आइदर आप BLCL को जाइए, बाल्मर लरी को जाइए, और नहीं तो आप अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स को जाइए, नहीं तो IRCTC में जाइए, IRCTC में जाइए। फास्ट एक गवर्नमेंट मेल ID क्रिएट कीजिए। गवर्नमेंट मेल ID आपको कैसे मिलेगा, gov.in और nic.in, आप आपका डिपार्टमेंट को अप्रोच कीजिए, ठीक है। आप लेटर लिखिए, फॉरवर्ड कीजिए लेटर, ठीक है, आपका अथॉरिटी से। तो आपको मेल ID मिल गया, उसमें ही आप लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करके, सपोज आपका जो डिपार्टमेंट का इसके साथ लिंक है BLCL बाल्मर लरी के साथ, उसमें आपका गवर्नमेंट मेल ID आपको देना है और लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करना है, और आपका नेम और आपका डिपेंडेंट को आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फिर जाइए, आपका डेस्टिनेशन डालिए। डेस्टिनेशन डालने के बाद आपका सब फ्लाइट आ जाएगा, सब फ्लाइट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आ जाएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट में क्लियरली पता आ जाएगा कि कौन सा एजेंसी से आप टिकट लिया और कौन सा स्लॉट। सपोज ये स्लॉट है 6 PM to 9 PM स्लॉट, इस स्लॉट को आप चूज किया, 3 आवर स्लॉट होता है, ये स्लॉट पता चल जाएगा, और कौन सा एजेंसी से टिकट लिया वो भी पता चल जाएगा, और पूरा फ्लाइट्स आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, फ्लाइट्स प्राइस आ जाएगा। तो फ्लाइट्स प्राइस जो आ जाएगा, सपोज चीपेस्ट फ्लाइट, सपोज ये है चीपेस्ट फ्लाइट 6000 है, चीपेस्टली CH कर दिया चीपेस्ट फ्लाइट, मगर आपको रेंज और कोई फ्लाइट है जिसका प्राइस 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, उसको भी चूज कर सकते हो। तो आपका जो रेंज होगा टिकट का 6000 to 6600 के अंदर आप कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हो। कोई भी फ्लाइट का प्राइस 6000 मोर देन 6600 होगा, आप फ्लाइट बुक कर दिए, वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो बताया जो चीपेस्ट फ्लाइट है उससे 10% आप ऐड करके कोई भी फ्लाइट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन में, यदि जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है वो चाहता है कोई एक इधर रीजियन को घूमने के लिए, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार, कैसे कौन सा रूट में बताया,
कब तक आपको आपका एंटाइटलमेंट में जाना है और कहां से आपको जाना है प्लेन में, मैं आपको पूरा बता दिया, और कैसे टिकट बुक करना है वो भी बता दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से नॉर्मली जैसे हम एलटीसी के लिए जो एआर के लिए एंटाइटल है वो इसी तरीके से टिकट बुक करते हैं। तो एसडीसी स्कीम में आप स्पेशल कंसेशन में आप कोई एक रीजन को घूमना चाहते हो चारों रीजन से, तो आपको ऐसे ही टिकट बुक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, द नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर टू ट्रैवल बाय एयर अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम डायरेक्टली। आप डायरेक्टली चले गए, तो डायरेक्टली आप जब जाओगे, देखिए डायरेक्टली क्या है, जैसे मेरा हेडक्वार्टर बीबीएसआर है, मेरा हेडक्वार्टर है बीबीएसआर, मुझे मेरा डेस्टिनेशन यही होगा, मैं ये जो स्पेशल इम्फाल जाना चाहता हूं ये स्कीम में, स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में मैं इम्फाल जाना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली क्या किया, एयर में चला गया। मगर ये तो नहीं है कि आपको जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब जाना है तो एयर में कहां से जाना है, कोलकाता और गुवाहाटी। मुझे जाना था यहां से मैं लिख दिया, जो ये था कोलकाता और गुवाहाटी था, मगर मैं डायरेक्टली भुवनेश्वर टू इम्फाल एयर में चला गया। तो इस केस में मुझे कैसे रीइंबर्समेंट मिलेगा, मेरा रीइंबर्समेंट कैसे होगा। तो यहां पर देखिए मजा बात है, आप जा सकते हो ऐसे डायरेक्टली, मेरा हेडक्वार्टर से मैं इम्फाल चला गया, मगर उसको मैं ब्रीच कर दिया। जैसे मुझे जाना था कोलकाता और गुवाहाटी तक, मेरा एंटाइटलमेंट के हिसाब से जाना था, मेरा एंटाइटलमेंट क्या था, सेकेंड एसी था, सेकेंड एसी में जाना था, और आइदर कोलकाता टू इम्फाल और गुवाहाटी टू इम्फाल एयर में जाना था, मगर मैं नहीं किया, बीबीएसआर टू इम्फाल डायरेक्टली चला गया। तो इस केस में क्या करना है कि आप जा सकते हो, मगर आपका जो रीइंबर्समेंट होगा तब तो याद रखिए, बेसिकली यहां से कोलकाता गुवाहाटी से जो भी सपोज कोई भी इम्फाल के लिए जो प्लेन है, फ्लाइट है, उसका एक स्क्रीनशॉट करके आप रखिए, ठीक है। आप डायरेक्टली अभी चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा, जब रीइंबर्समेंट ऐसे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कीजिए डायरेक्टली इसमें तो फ्लाइट टिकट कर दिया बीबीएसआर टू इम्फाल, मगर उस केस में आप सीधा कोई साइट में, सपोज आईआरसीटीसी में आप एलिजिबल हो, आईआरसीटीसी में जाकर कोलकाता से इम्फाल और गुवाहाटी से इम्फाल एक स्लॉट, जो स्लॉट में आप सपोज बीबीएसआर टू इम्फाल आप 6 to 9 PM में इसमें इसी स्लॉट में आप बुक किया था, ये 3 आवर स्लॉट में डायरेक्टली बीबीएसआर टू इम्फाल, तो उस केस में आप तो टिकट बुक कर चुके हो। मगर इस केस में आप क्या करना है, आइदर कोलकाता टू इम्फाल और गुवाहाटी टू इम्फाल, इसी स्लॉट में जाकर आइदर कोलकाता टू इम्फाल और गुवाहाटी टू इम्फाल डाल के पूरा जो फ्लाइट्स है उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि उसमें इसी स्लॉट में, जो स्लॉट में आप बीबीएसआर टू इम्फाल टिकट कर दिया, ओके, वो टिकट तो हो गया, मगर यहां पर उसी समय आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट रखना है कोलकाता टू इम्फाल और गुवाहाटी टू इम्फाल, कोई भी एक आप डाल के इसी स्लॉट में जाइए 6 to 9 PM यदि फ्लाइट्स है, ओके, उसका एक स्क्रीनशॉट रखिए, उसमें सेम स्लॉट जो बीबीएसआर टू इम्फाल आप गए थे 6 to 9 PM, उसी स्लॉट में जाकर जिस साइट से आप जैसे आप किया था उसी साइट में आईआरसीटीसी से किया था, आईआरसीटीसी में जाइए और उसी स्लॉट में आइदर कोलकाता टू इम्फाल और गुवाहाटी टू इम्फाल जो आप डालकर जो भी फ्लाइट्स उसका प्राइस है और उसका स्लॉट, उसका एक स्क्रीनशॉट रख दीजिए, क्योंकि उसके आपका जो रीइंबर्समेंट होगा ना, आप तो बीबीएसआर टू इम्फाल चले गए मगर उसके हिसाब से रीइंबर्समेंट नहीं होगा। सपोज आप यहां पर जो स्क्रीनशॉट रखा, कोलकाता टू इम्फाल एक स्क्रीनशॉट रख दिया, कोलकाता टू इम्फाल, ठीक है, आप उसी स्लॉट में 6 to 9 में उसी स्लॉट में कोलकाता टू इम्फाल जो उसी स्लॉट में 6 to 9 PM स्लॉट में जाकर जो भी फ्लाइट्स है उसका प्राइस है आप एक स्क्रीनशॉट रख दिया, ठीक है। अभी आपका रीइंबर्समेंट कैसे होगा ना, बीबीएसआर टू कोलकाता आपको सेकंड एसी, क्योंकि आप एंटाइटलमेंट था, बीबीएसआर टू कोलकाता सेकंड एसी के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलेगा, और कोलकाता टू इम्फाल आप तो स्क्रीनशॉट रखे हो, उसमें जो चीपेस्ट फ्लाइट है, और चीपेस्ट में हम 10% ऐड कर देंगे, उसके अंदर कोई फ्लाइट है तो उसके हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट मिलेगा, समझ में आ रहे हो। और यदि बीबीएसआर टू इम्फाल आप स्लॉट जो था 6 to 9 PM, मगर अभी आपको करना है कोलकाता टू इम्फाल एक स्क्रीनशॉट रखना है, कोलकाता टू इम्फाल डाल के, क्योंकि आप एलिजिबल हो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में, जो एयर में जाओगे यदि कोई भी नॉर्थ ईस्ट रीजन, तब आइदर कोलकाता
इधर कोलकाता और गुवाहाटी से आप प्लेन ले सकते हो, मगर आप अभी डायरेक्टली चला गया बीबीएसआर से इम्फाल, आपका डेस्टिनेशन इम्फाल है, मगर आपको जाना था इधर कोलकाता टू इम्फाल की गुवाहाटी टू इम्फाल एयर में, और बाकी बीबीएसआर टू कोलकाता और बीबीएसआर टू गुवाहाटी सेकंड एसी में, क्योंकि आप सेकंड एसी के लिए एंटाइटल थे। आप नहीं कि आप डायरेक्टली बीबीएसआर टू इम्फाल चले गए, तो उसके इसमें जा सकते हो, मगर एक स्लॉट रख दो, जैसे कोलकाता टू इम्फाल आप एक स्क्रीनशॉट रख दो, वही स्लॉट में जाकर, इसी स्लॉट में प्लेन नहीं है तो और कोई एक स्लॉट में जाकर, ओके, जो फ्लाइट्स है कि उसका प्राइस है पूरा डिटेल्स उसको रख दो, तो आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा बीबीएसआर टू कोलकाता सेकंड एसी, और जो कोलकाता टू इम्फाल आप स्क्रीनशॉट रखा उसमें क्लियरली मेंशन है फ्लाइट्स जो चीपेस्ट है उसमें 10% ऐड करके उसी रेंज के अंदर कोई फ्लाइट है, ठीक है, कोई फ्लाइट है नहीं है तो आपको वही चीपेस्ट फ्लाइट के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर दे दिया भाई, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंसर्न्ड वेब पेज हैविंग फ्लाइट एंड फेयर डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट फॉर रिलेवेंट रेल हेड कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई, विशाखापट्टनम टू द प्लेस ऑफ विजिट। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा दीजिए, ओके, प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ अंडमान निकोबार विद द सेम टाइम स्लॉट वेयर द डायरेक्ट फ्लाइट हैज बीन बुक्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीइंबर्समेंट। सपोज अभी क्या है, देखिए आपका डेस्टिनेशन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और आपका जो हेडक्वार्टर है वो बीबीएसआर है। इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें हेडक्वार्टर है बीबीएसआर, तो आप जाना चाहते हो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, आप डायरेक्टली बीबीएसआर टू जम्मू एंड कश्मीर चले गए एयर में, मगर आपका रूट जो था कहां था, न्यू दिल्ली अमृतसर से आपको प्लेन में जाना था, मगर अभी आप डायरेक्टली चले गए, ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए, आइदर बीबीएसआर टू दिल्ली और अमृतसर, इसमें एक सपोज इस स्लॉट में आप चले गए 3 to 6 PM, इसी स्लॉट आप चूज किया बीबीएसआर टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एयर में डायरेक्टली चले गए, मगर आपको जो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में आपको कहां से प्लेन में जाना था, दिल्ली और अमृतसर, इतना तक आपको आपका एंटाइटलमेंट सपोज सेकंड एसी है, आपका एंटाइटलमेंट सेकंड एसी है, तो सेकंड एसी के हिसाब से आपको जाना था, मगर आप डायरेक्ट चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट जाते हो, तो अभी आप क्या करो कि बीबीएसआर टू दिल्ली और अमृतसर आप एक वेबसाइट वो डाल के आप जाके इसी स्लॉट में जो भी फ्लाइट्स है उसका प्राइस है उसका एक स्क्रीनशॉट ले जाइए, ठीक है, उसको रखना चाहिए, और उसके बाद आपका जो रीइंबर्समेंट होगा, एक्चुअली सपोज आप अभी इसी का स्क्रीनशॉट रख दिए दिल्ली टू सपोज जम्मू एंड, सपोज आप इसमें फ्लाइट टिकट जो है दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, वहां पर आप श्रीनगर आप कर दीजिए, सपोज आप इसमें फ्लाइट जो है आप उसका स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, तो सपोज आप दिल्ली बीबीएसआर टू दिल्ली आपको सेकंड एसी मिलेगा, बीबीएस तो आपको रिइंबर्समेंट जो मिलेगा बीबीएसआर टू दिल्ली सेकंड एसी के हिसाब से मिलेगा, और दिल्ली टू सपोज आप श्रीनगर तो वो आपका एयर के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, तो वैसा ही आप सपोज आप डायरेक्टली बीबीएसआर टू जम्मू कश्मीर चले गए और अमृतसर टू श्रीनगर आप एक सपोज स्क्रीनशॉट रखे हो जो फ्लाइट्स का, तो बीबीएसआर टू जम्मू एंड बीबीएसआर टू अमृतसर आपको सेकंड एसी मिलेगा, सेकंड एसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा, और अमृतसर टू श्रीनगर आपको फ्लाइट में मिलेगा, आप उसी के हिसाब से आपको स्क्रीनशॉट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हो मगर एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट रखना है, यदि आप डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हो फिर तो डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हो। जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है, ये जो है ना, ये नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है, जो एंटाइटल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन एंटाइटल है यदि आप डायरेक्ट फ्लाइट से चले जाते हो, जैसा जो रूट चूज किया गया है वो रूट को आप ब्रीच करके डायरेक्ट फ्लाइट में चले जाते हो, तो ऐसे आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी सपोज जाना है, सपोज सिक्किम जाना है, ये डेस्टिनेशन आपका हेडक्वार्टर बीबीएसआर है, तो आपको कैसे जाना है, आइदर
गैंगटॉक, इट मीन्स, ठीक है, गैंगटॉक, ठीक है, गैंगटॉक जाना है तो आपको आइदर कोलकाता और गुवाहाटी से गैंगटॉक जाना है प्लेन में। तो मगर अभी डायरेक्टली आप चले गए गैंगटॉक एयर में, तो आपको ये स्लॉट था, सपोज ये 12 नून टू 3 AM स्लॉट था, ये सॉरी 3 PM स्लॉट था, इसी स्लॉट में आप डायरेक्टली चले गए BBSR टू गैंगटॉक, ठीक है। मगर डायरेक्टली चले गए, मगर आपको रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा? इसी स्लॉट में, इसी स्लॉट में आपको वो जो 3 एजेंट्स है जिसमें आप BBSR टू गैंगटॉक का प्लेन जो बुक किया, उसी में जाकर आप क्या, सपोज आप इसमें कर दिया IRCTC में, IRCTC में कर दिया, तो आप IRCTC में जाइए, ये स्लॉट दीजिए 12 to 3 PM, ठीक है, और इसमें कोलकाता टू गैंगटॉक, ठीक है। तो आपको यहां पर इजी हो जाएगा, कोलकाता टू गैंगटॉक, कोलकाता टू गैंगटॉक एक वेबसाइट का आपको इसमें डालकर आप देखिए क्या क्या फ्लाइट है, प्राइस है, स्लॉट वही स्लॉट दीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट रखिए। आपका जो रीइंबर्समेंट मिलेगा BBSR टू कोलकाता सेकंड AC में मिलेगा, क्योंकि आप एंटाइटल हो सेकंड AC, इतना तक आपको सेकंड AC मिलेगा, क्योंकि आप सेकंड AC में एंटाइटल हो, आप एयर के लिए थोड़ी एंटाइटल हो, आप सेकंड AC के लिए एंटाइटल हो। मगर अभी स्पेशल ये जो डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम है, इसमें आप एयर में ट्रैवल कर सकते हो, मगर रूट में आपको बताया था, तो BBSR टू कोलकाता सेकंड AC और कोलकाता टू गैंगटॉक आपको एयर में मिलेगा। मगर इस तरीके से इसी स्लॉट में 12 to 3 PM स्लॉट में आपको कोलकाता टू गैंगटॉक का एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट रखना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेम स्लॉट में टिकट नहीं है तो और कोई स्लॉट का आप स्क्रीनशॉट रखिए वेबसाइट का, ठीक है। इन केस द फ्लाइट टिकट्स आर नॉट अवेलेबल इन द सेम स्लॉट, द प्रिंट आउट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट्स अवेलेबल इन द नेक्स्ट स्लॉट में भी रिटर्न, ओके। तो यहां पर जो रेस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे होगा तो बेसिकली आप जैसे BBSR आपका डेस्टिनेशन गैंगटॉक है, तो आपको यहां पे कोलकाता, तो यहां तक सेकेंड AC, यहां तक सेकेंड AC और यहां तक एयर, इससे आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्ट यहां पे चले जाते हो एयर में, तो आपको बेसिकली कोलकाता टू गैंगटॉक इसका एक स्क्रीनशॉट रखना है, कोलकाता टू गैंगटॉक जाके आप डाल के जो भी वेब पेज आएगा उसका एक स्क्रीनशॉट रखना है, उसमें सब फ्लाइट्स और फेयर वो सब आ जाएगा, और उसके हिसाब से आपको BBSR टू कोलकाता सेकंड AC और कोलकाता टू गैंगटॉक आपका ये स्क्रीनशॉट को देखकर, इसमें फ्लाइट और प्राइस है, उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट नहीं रखा कोलकाता टू गैंगटॉक मींस आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा वहां पे, ओके। आप डायरेक्टली BBSR टू गैंगटॉक चले जाते हो तो, ठीक है। तो इन सच केसेस the reimbursement will be restricted to the actual airfare for the direct journey or the fare entitled under special dispensation scheme whichever is less। ये बताया, अभी डायरेक्टली आप एयर में जा रहे हो और आप ऐसे जो स्पेशल SDC में जो आपको जो एंटाइटलमेंट मिलेगा, दोनों में जो लेस होगा वही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, टाइम लिमिट है। सभी समय आप जो टाइम लिमिट में टिकट बुक करोगे एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन LTC। सपोज आप फिक्स किया है कि मैं मुझे LTC लेना है, तो एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन LTC आपको टिकट बुक करना है। कि इसमें क्या होगा, फेयर कॉम्पिटेटिव होना है, उससे कम हो जाएगा तो फेयर ज्यादा बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, तो इसलिए टू अवेल द मोस्ट कॉम्पिटेटिव फेयर्स एंड मिनिमाइज बर्डन ऑन द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन LTC तो आपको टिकट बुक करना है। एम्प्लॉइज आर इनकरेज टू बुक फ्लाइट टिकट्स, ठीक है। ये टाइम लिमिट को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन में अभी बताया था, यदि आप अभी एयर टिकट करना चाहते हो, चाहे आप एंटाइटल हो, ये आप जो SDC है नॉर्मल तो करोगे, जैसे आप एंटाइटल हो एयर में तो आपको तो करना ही करना है, मगर SDC में जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है, जो नॉन एंटाइटल एम्प्लॉय है उनको भी गवर्नमेंट मेल ID चाहिए, ऑफिशियल मेल ID, ऑफिशियल मेल ID होना चाहिए gov.in और nic.in,
आपका जीमेल, रेडी मेल की आपको याहू, ये सब नहीं चलेगा। तो आपको क्या क्या देना है, आपका जो डिपार्टमेंट को आपको लेटर लिखना है। ओके, तो आपका नेम्स, एम्प्लॉय कोड, ये सब नेम्स, एम्प्लॉय कोड नंबर, प्राइवेट मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब दे देना है कि मुझे एलटीसी के लिए मुझे गवर्नमेंट मेल आईडी चाहिए। तो आपको एक गवर्नमेंट मेल आईडी इशू होगा, तो उसी से आपका डिपार्टमेंट का जिसके साथ लिंक है, जिस ऑथराइज्ड एजेंसी तीनों जो है, बालमर लॉरी है कि अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स है, आईआरसीटीसी है, तो उसमें जाकर आप वो गवर्नमेंट मेल आईडी डालकर उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो नहीं है आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी, तो आप अभी नॉन एंटाइटल हो। नॉर्मली आप नॉन एंटाइटल हो प्लेन में, मगर एसडीसी स्कीम में आप कोई एक रीजन, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हो। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट मेल आईडी चाहिए, तो अभी आप एक आपका डिपार्टमेंट को लिखकर गवर्नमेंट मेल आईडी इशू कर दीजिए। ठीक है, तो आपका नेम, जो आपका प्राइवेट मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देकर एक लेटर लिखिए और आपको मेल आईडी इशू होगा, गवर्नमेंट मेल आईडी। तब जाकर आप एसडीसी स्कीम में आप जो जिस रूट में आपको एयर ट्रैवल के लिए आप एंटाइटल हो, आप एयर में ट्रैवल कर सकते हो। ये लिंक से सपोज आप टिकट बुक करोगे, जैसे बालमर लरी का ये लिंक है गवर्नमेंट gov.balmerlurrytravelapp.com, इसी में जाइए, इसी वेबसाइट में जाकर आप जो गवर्नमेंट मेल आईडी है उसको गवर्नमेंट मेल आईडी को दीजिए और उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, क्रिएट करके आप आपका नेम और आपका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर रजिस्टर कीजिए और बुक कीजिए, और जो एलटीसी टिकट आएगा वो एलटीसी लिखा जाएगा। और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिए जो चीपेस्ट फ्लाइट है, चीपेस्ट फ्लाइट से 10% ऐड कीजिए। ओके, उसी रेंज के अंदर आपको टिकट करना है, क्योंकि द फ्लाइट हुज प्राइस इज 10% मोर देन द चीपेस्ट फ्लाइट, वही हो सकता है, उसी रेंज के अंदर आप टिकट कीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट रखिए। वैसा ही अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, ये है attitdc.in, www.attitdc.in, इसमें अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स। आईआरसीटीसी तो आप जानते हो कॉमन है, www.air.irctc.co.in, इस ये वेबसाइट है। ठीक है, ये लिंक को भी याद रखना है। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो, कैंसिलेशन ऑफ टिकट, सभी समय आप कैंसिल करने के लिए आप अवॉइड कीजिए। एम्प्लॉइज आर आल्सो एनकरेज टू अवॉइड अननेसेसरी कैंसिलेशंस। और कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल्स मेड लेस देन 24 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन 24 आवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल्स मेड लेस देन 24 आवर्स, कैंसिल करना चाहते हो लेस देन 24 आवर्स से आप कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों आप कैंसिल किया। एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन आपको देना है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को देना है कि इसी सर्कमस्टांस में, इसी इमरजेंसी कंडीशन में मैं टिकट को कैंसिल किया। ठीक है, तो ये इसको याद रखिए, लेस देन 24 आवर्स में आप टिकट कैंसिल करना चाहते हो तो आपको एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना है। और यहां पर जो कैंसिलेशन जो चार्जेस है वो एक्चुअली नील और जीरो है, मगर जब तक ये नील जीरो नहीं होगा तब तक वो रीइंबर्समेंट, कैंसिलेशन चार्जेस रीइंबर्समेंट होगा, क्योंकि आप जस्टिफिकेशन प्रॉपर दे दिया लेस देन 24 आवर्स कि चाहे मोर देन 24 आवर्स। यदि कोई कैंसिलेशन चार्जेस लगता है वो रिइंबर्समेंट होगा, जब तक वो कैंसिलेशन चार्जेस को वो जीरो और नील ना कर दे। मगर अभी गवर्नमेंट उनको ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी को बोला है कि कैंसिलेशन चार्जेस को सभी समय नील और जीरो करना है, नहीं तो कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लगता है तो वो रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, एक ही टिकट बुक करना है, मोर देन वन टिकट आप बुक कर देते हो तो ऐसा नहीं होगा। आप जा रहे तो वन टिकट, ठीक है, तो बुक करना है। एम्प्लॉइज शुड प्रिफरेबली बुक ओनली वन टिकट फॉर ईच लेग ऑफ इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी, होल्डिंग मोर देन वन टिकट इज नॉट अलाउड। ठीक है, unavoidable circumstances where the booking of ticket is done from unauthorized, सपोज आप अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से टिकट कर दिया, जो 380 है ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से आप टिकट नहीं किया, कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से टिकट कर दिया, तो उसको फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये देखिए ये इसको रिलैक्स कर सकते हैं। द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ये एक ऑप्शन है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, जो इन सबऑर्डिनेट और अटैच्ड ऑफिसेस, वो रिलैक्स कर सकते हैं। तो सभी समय याद कीजिए, यदि आप कोई अनऑथराइज्ड एजेंसी से टिकट कर दिया, सपोज आप बालमर लरी, आईआरसीटीसी और अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स में टिकट नहीं किया और कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से टिकट कर लिया और आप रीइंबर्समेंट चाहते हो, तो वो जाएगा, जो आपका डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है वो रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है
उसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, इसको याद रखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन सबऑर्डिनेट और अटैच्ड ऑफिसेस, तो उनके द्वारा ही रिलैक्सेशन होगा, नहीं तो रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। और यहां पर नो माइलेज पॉइंट्स विल बी जनरेटेड अगेंस्ट ट्रैवल, कोई माइलेज पॉइंट्स इसमें जनरेट नहीं होगा, ठीक है। एडवांसेस का बात आएगा, देखिए एडवांसेस का बात जब आता है तो आप एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी आपको पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना है, पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। कुछ नहीं, टिकट बुक नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट में जो फ्लाइट 1 प्राइस ये सब आता है, फ्लाइट 2 ये प्राइस सब आता है, फ्लाइट 3 ये प्राइस आ गया, और इसमें स्लॉट सपोज आप दे दिया 3 PM to 6 PM, ये करके एक स्लॉट जाइए, डेस्टिनेशन दे दीजिए, और इसमें फ्लाइट 1 फ्लाइट 2 ऐसे आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको जब आप जमा करोगे तो आपको एडवांस मिल जाएगा, ठीक है। 3/4 अभी जो बोल रहा है 3/4 एडवांस मिलता है। 3/4 मीन्स बेसिकली इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंटाइटल फॉर एयर ट्रैवल, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको आपको एडवांस मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट आपको टिकट बुक नहीं करना है, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी, ठीक है। तो आपको ऐसे आपको तो एक स्लॉट चूज करना है, और डेस्टिनेशन आपका जो बेसिकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग उसके पास जो एयर जो है, और डेस्टिनेशन उसको बुक ऐसे करके उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लीजिए और वो स्क्रीनशॉट को जमा कीजिए, तो आपको 4/5 उसका एडवांस मिल जाएगा। जैसे 80%, 4/5 मीन्स 80%, ओके। जो चिपेस्ट है, चिपेस्ट से 10%, 6,000 सपोज इसमें सॉरी इसमें चिपेस्ट कौन है 5,000, तो 5,000 to 5,500, तो इसके अंदर सपोज इसका 80% आपको एडवांस मिल जाएगा, मगर आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देना है, टिकट बुक नहीं करना है, वेबसाइट का ओनली ऐसा जो आप जाकर आपका डेस्टिनेशन डाल दीजिए और जो स्लॉट डालिए, और आपका पूरा फ्लाइट्स और प्राइस आ जाएगा। और सपोज इसमें मेरा एग्जांपल में जो फ्लाइट 2 है वो चीपेस्ट है, उसका 10% हाइक कर दिया 5,500, इसी के अंदर कोई फ्लाइट है, इसी प्राइस के अंदर कोई फ्लाइट आप चूज कर सकते हो, तो उसका 80% आपको एडवांस मिलेगा। वो जब जो स्क्रीनशॉट वेबसाइट का आप जो स्क्रीनशॉट आप जब जमा करोगे उसका 80% मिल जाएगा। मगर एक काम क्या करना है ना, 30 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ जर्नी, ओके। और बाद में एडवांस मिलने के बाद आप टिकट बुक कीजिए, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल, उनको कैसे एडवांस मिलेगा, तो आपको जैसे मैं अभी जाना चाहता हूं कि मेरा जो हेडक्वार्टर है BBSR है, और मेरा डेस्टिनेशन इम्फाल होगा, तो मुझे सपोज कलकत्ता देकर जाना है, कोलकाता देकर जाना है, और यहाँ से मैं एंटाइटलमेंट मेरा है, एंटाइटलमेंट सेकेंड AC में है, तो BBSR टू कोलकाता सेकेंड AC, ओके। और इसमें कोलकाता टू इम्फाल एयर, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे एडवांस मिलेगा, ओके। इसका जो आप सेकेंड AC का जो स्क्रीनशॉट ले जाइए, सेकेंड AC में स्क्रीनशॉट ले जाइए, और कोलकाता टू इम्फाल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर आप दीजिए, उसका जो भी प्राइस होगा उसका 4/5 इट मीन्स 80% आपको एडवांस मिल जाएगा। मगर ऐसे ही आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है, जो नॉन एंटाइटल है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में जाना चाहते हैं। रूट है ना, पर्टिकुलर रूट है, आप जैसे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जाना चाहते हो तो दिल्ली अमृतसर से आप एयर फ्लाइट में जा सकते हो, बाकी तब तक आपको सेकेंड AC में जाना है, सपोज एंटाइटलमेंट सेकेंड AC है, ठीक है। तो वही दे दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल एंड विश टू ट्रैवल बाय एयर बट नॉट अंडर द स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में अप्लाई फॉर LTC एडवांस विद रिफरेंस टू। अच्छा, ये एक सेकंड केस में क्या दिया, ये सपोज इस स्कीम में नहीं है, इस स्कीम में नहीं है, आप नॉर्मली आप सेकेंड AC के लिए, ये स्कीम में नहीं है, स्पेशल डिस्पेंसेशन कॉन्सेशन को छोड़ दीजिए। जैसे आप सेकेंड AC में आप एंटाइटल है, मगर आप AR में चले गए, आप अभी AR में चले गए, फ्लाइट में चले गए, तो आपको जो एडवांस लेना है, एडवांस इसी के हिसाब से लेना है, सेकेंड AC के हिसाब से। प्लेन में जा सकते हो मगर आपको एडवांस सेकेंड AC से मिलेगा,
ठीक है, आपका एंटाइटलमेंट सेकंड एसी है, ठीक है, तो सेकंड एसी रेल और बस फेयर के हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है। मगर आप एयर में जा रहे हो, एयर टिकट दे रहे हो, जो एयर टिकट होगा वो उसके हिसाब से आपको एडवांस नहीं मिलेगा। आपको जो डेस्टिनेशन है सेकंड एसी एंटाइटलमेंट है सेकंड एसी के हिसाब से, मगर एसडीसी स्कीम में नहीं। एसडीसी में होगा तो मैं आपको बताया कैसे, ठीक है। और यहां पे दे दिया दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज who are not entitled for air travel but wish to travel by air under, ये एसडीसी स्कीम आ गया। तो उसमें आपको इतना तक, जैसे कलकत्ता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर, ये इतना तक आपका सपोज एक एग्जांपल दे दिया, एंटाइटलमेंट है सेकेंड एसी, तो यहां तक आपको सेकेंड एसी मिलेगा, यहां तक सेकेंड एसी के हिसाब से एडवांस मिलेगा। और प्लस फिर यहां से आप एयर फेयर जो है कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर टिल द प्लेस ऑफ विजिट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहां पे आपको, ठीक है, एयर में, सेकंड में एयर में, तो उसमें यहां ये जो प्लेस में बताया सेकंड एसी, यहां पर एयर, तो उसके हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है। मैं अभी इसका एग्जांपल दे चुका हूं, बीबीएसआर टू इंफाल एक दे दिया था, जैसे बीबीएसआर टू आप इंफाल जाना चाहते हो तो कोलकाता देकर, तो अप टू कोलकाता ये आ जाएगा सेकेंड एसी, ये आ जाएगा सेकेंड एसी, और कोलकाता टू इंफाल एयर, तो उसके हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, क्लियर। प्रोविजंस फॉर रीइंबर्समेंट को चलेंगे, इन केस एट द टाइम ऑफ एक्चुअल बुकिंग ऑफ द टिकट आफ्टर रिसीविंग द एडवांस। अच्छा, आप एडवांस ले लिया, मगर एडवांस जब ले रहे हो तो तब तो आप ओनली स्क्रीनशॉट दिया है वेबसाइट का, तब तो टिकट बुक नहीं किया था, मगर जब टिकट बुक किया तब प्राइस बढ़ चुका है। देखिए, जब एडवांस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट वेबसाइट का लेके आप बता दिया कि जो फ्लाइट है चीपेस्ट फ्लाइट 6000 है, ठीक है, एडवांस ले लिया, इसका 80% एडवांस मिल गया, मगर अभी आप जब टिकट बुक करे हो वो 6500 हो गया, ये एक्चुअल हो गया, तो ये जब आपका रीइंबर्समेंट करोगे तब उसमें ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। जब स्क्रीनशॉट वेबसाइट का लिए थे वो चीपेस्ट फ्लाइट 6000 था, उसके हिसाब से आपको 80% एडवांस मिल गया, मगर कुछ दिन के बाद जब टिकट किए उसका प्राइस 6500 हो गया, आप समझ रहे कि नहीं। तो क्या आपको उसके हिसाब से आपको, तो वो सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज एनी डिफरेंस इन फेयर ओइंग टू द टाइम गैप बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर एडवांस एंड ग्रांट ऑफ एडवांस, वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, in all cases where the non-entitled government employees travel by air under special dispensation scheme directly, आप डायरेक्टली जाते हो तो डायरेक्टली मैं आपको बताया था रिइंबर्समेंट, जैसे आप सपोज आप इसमें देखिए बीबीएसआर टू इंफाल डायरेक्टली चले गए, ठीक है, इस स्कीम में स्पेशल ये में, मगर इसमें नहीं होना चाहिए। सपोज आपको कोलकाता, यहां पे आपको क्या कैसे मिलेगा ना, जब आप ये डायरेक्ट फ्लाइट तो आप कर दिया, ये एक स्लॉट में, ये जो स्लॉट में किया था 3 to 6 PM स्लॉट में किया था, तो इसी स्लॉट में आप कोलकाता टू इंफाल एक वेबसाइट का आप ये स्क्रीनशॉट ले जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एलिजिबल एयर के लिए कोलकाता टू इंफाल हो स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन स्कीम में, मगर आप डायरेक्टली बीबीएसआर टू इंफाल चला गया, ठीक है, तो तब आप क्या करो ना, कोलकाता टू इंफाल आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले जाओ, और उसी स्लॉट में 3 to 6 PM जिस स्लॉट में आप बुक किया था बीबीएसआर टू इंफाल, ठीक है, जो भी फ्लाइट्स आएगा पूरा क्लियर स्लॉट आ गया, सेम स्लॉट आ गया, फ्लाइट्स आ गया, उसका प्राइस भी आ गया, सब कुछ आ गया, है कि नहीं। तो जब आप रीइंबर्समेंट करना चाहते हो तब बीबीएसआर टू कोलकाता, ये सेकेंड एसी, सपोज आप सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, बीबीएसआर टू कोलकाता सेकेंड एसी, और कोलकाता टू इंफाल आप उसका वेबसाइट का दे चुके हो ना, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, तो उसका जो चीपेस्ट फ्लाइट है और उसमें 10% ऐड करके सपोज चीपेस्ट फ्लाइट यही था 6000 था, और 6600 के अंदर कोई फ्लाइट है तो जो भी है वो रिइंबर्समेंट हो जाएगा, इसी के अंदर चीपेस्ट फ्लाइट 6000 था, सपोज उसका 10% हाइक कर दीजिए 6600, इसी के अंदर कोई फ्लाइट है तो वो रिइंबर्स हो जाएगा, मगर आपको स्क्रीनशॉट रखना है कोलकाता टू इंफाल, मगर आप डायरेक्टली अभी बीबीएसआर टू इंफाल चले गए, मगर आप कोलकाता से इंफाल आप एलिजिबल हो प्लेन के लिए, तो आपको
याद रखना है, जिस स्लॉट में आप बीबीएसआर टू इम्फाल बुक किया उसी स्लॉट में आप कोलकाता टू इम्फाल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले जाइए। रिइंबर्समेंट नहीं तो रिइंबर्समेंट ओनली बीबीएसआर टू कोलकाता सेकेंड एसी का जो ट्रेन का आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट जा सकते हो मगर जिस रूट से आपको प्लेन के लिए एलिजिबल हो उसका वेबसाइट का स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, तब रिइंबर्समेंट आपको मिलेगा। क्लियर? तो वही चीज को यहां पर दे दिया। यदि सेम स्लॉट में टिकट अवेलेबल नहीं है सेम स्लॉट में, तो और कोई स्लॉट का वेबसाइट ले जाइए। सपोज देखिए आप बीबीएसआर टू इम्फाल आप डायरेक्ट फ्लाइट में चले गए, ये स्लॉट था 3 to 6 PM, ठीक है, मगर आप कोलकाता देकर जाना था, ठीक है सपोज। तो अभी आप कोलकाता टू इम्फाल स्क्रीनशॉट लीजिए वेबसाइट का, ये इसी स्लॉट में नहीं है तो और कोई स्लॉट में चले जाइए। 3 to 6 नहीं है तो 6 to 9 PM स्लॉट में जाइए, उसी स्लॉट में जाकर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां पर रिइंबर्समेंट आपको मिलेगा जो नॉन एंटाइटल है। ओके, बीबीएसआर टू कोलकाता सेकेंड एसी, कोलकाता टू इम्फाल आपको मिल जाएगा एयर का, ऐसे रिइंबर्समेंट मिलेगा। मगर ये जो है नॉन एंटाइटल के लिए है, नॉन एंटाइटल एम्प्लॉइज के लिए है रिइंबर्समेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल एंड विश टू ट्रैवल बाय एयर बट नॉट ऑन। अच्छा, ये स्कीम नहीं है, अभी मैं बताया था स्पेशल ये स्कीम नहीं है। आप नॉर्मली आप जाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सेकेंड एसी एंटाइटल हो, सेकेंड एसी एंटाइटल हो, मगर आप एयर में चले गए, तो आपको कहां से टिकट बुक करना है? एटीए से, 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी, जो 3 एटीएज है उनसे ही, और कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से आप टिकट बुक कर लिया, एयर में चले गए, तो आपको रिइंबर्समेंट जो मिलेगा सेकेंड एसी से मिलेगा। आप एयर में जा सकते हो मगर सेकेंड एसी से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, इसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा। मगर आपको सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो बट एयर में चले गए, मगर वो टिकट ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से होना चाहिए, बालमर लरी, आईआरसीटीसी और अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स। और कोई अनऑथराइज ये कर दिया तो ये जो सेकेंड एसी का जो एंटाइटलमेंट वो भी नहीं मिलेगा, आप याद रखिए। तो ये एसडीसी से नहीं, आप नॉर्मल जाना चाहते हो, आप एयर के लिए एंटाइटल नहीं हो, सेकेंड एसी के लिए एंटाइटल हो, मगर आप एयर में चले गए, तभी भी आप एटीएच से आप टिकट बुक कीजिए। वहां पर कोई नो टाइम स्लॉट, कोई टाइम स्लॉट वहां पर नहीं चाहिए, जो 3 आवर का, इसमें टाइम स्लॉट नहीं चाहिए, मगर 3 एटीएच से आपको टिकट बुक करना है, मगर आपको जो रिइंबर्समेंट मिलेगा सेकेंड एसी से मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान दीजिए। तो आज इतना ही था जो बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया। तो मेरा भी एलटीसी का वीडियो है, अभी जस्ट कुछ दिन के पहले मैं डाला था। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel, and also join my telegram channel also, and you can contact with me in my WhatsApp number also. आज इतना ही है, थैंक यू, नमस्कार।